have always believed in learning and drawing inspirations from people who live their life unconventionally. When you draw inspirations, you realize that there are many ways to lead your life and to apply multiple options in your life situations and then decide which one to take further. Inspirations take you ahead in your growth journey and keep you motivated when in doubt or in dull moments. I have many such inspirational people whom I have crossed paths with, and I draw inspirations from their life journeys. One such woman is being invited today on my podcast. She has been an inspiration to many. She has always lived fearlessly and unapologetically. She has been my guide and inspiration since I was a child. She's a housewife, a successful business owner, and a doted mother of two. It is my pleasure to welcome our guest for today, Mrs. Alka Gupta, director at Lala's, a homegrown Ayurvedic and herbal brand. Hello, Ishita. I'm Alka Gupta here, and thanks for inviting me to your podcast. And hello to all the listeners. Thank you so much, Alka. Hi, I'm Ashita Gupta, your podcast host, an HR professional, and a life evolution coach. You are listening to episode 40, The Brave Leap, with Mrs. Alka Gupta on Let's Evolve. In this podcast, we will be celebrating her journey, who dared to dream beyond the home. We will get to know her better. From managing households to building businesses, she has been extraordinary. As they say, because courage doesn't come with a roadmap, it comes with a leap. So, my first question to you, Mrs. Alka, is would you like to tell our listeners about your journey in short? How did you take the brave leap from home to business? Yes, of course. Ishita, from a simple housewife to a woman handling the business aspects without any basic skills and knowledge, I really had a tough time evolving myself from a suppressive personality to a dominant one. I have always focused on my targets, and eventually, I always found a way to fulfill my manifested dreams, changing all the no's which came into my way to all the yes. And at work, I never believed in any title. I did every work from sweeping the workplace to transporting cartons into the rickshaw, being production head, maintaining inventories, HR management, dispatches of orders, shouting at the staff for perfection, and hugging them also for good work and many more. Bapre, I had to be one among them to relate with their mindsets. But now, with the growth of our business, I have taken a backseat with my biggest asset being my team at Lala's. Since 20 years, they have been my support system. And now they have grown with me and my ideologies. So they take care of Lala's just as once I did. And now I'm really having this peaceful life now. I'm enjoying my life now. And then coming to your second question, second part of the question about the brave leap from home to business. After 6 years of marriage, I found myself lost in the chaos of these family relations. Pleasing everyone, I found myself so suppressed and not heard. And then there came a moment in my life where I was struggling in my personal life for money and the urge to break the bonds, to evolve and stand for what I am and what I believed. I felt as an illiterate woman, cripping all the time about life and relatives. But this was never me. From there on, I understood I had to level up and shut the mouth speaking ill about me and my husband, Mr. Rohit Gupta. Then a struggle story of me and him. 10 years of struggle story started. My husband needed someone as a moral support in his business unit, Lala's, which he started before our marriage. I could never understand family politics, Ishita. But one thing I simply understood was that I was never meant for such things. For me, the need of the time was money and respect
for both of us, for which I closed my ears and my eyes, ignoring those relatives and their talks, and I just moved forward with my focused goals. And this attitude gave birth to a new Alka and a new era of growth at Lala's. This was my story, initial Wow. story. Wow, that was Yeah. wonderful. Thank you so much. And one thing that struck me is that you said that 20 years was what your staff is with you even now. So that is a very big leap. So I would say Yes. thank you so much for sharing. Yes. So now my second I'm question to so you. proud of them. Yeah. Great, Yeah. great. Yeah. Please continue. Thank you so much. Yeah. So now my second question to you is आपने क्या challenges face किए हैं ये सब करने में? हाँ, challenges starting में बहुत थे. Like my daughter was 5 years old. मेरा बेटा 5 महीने का था जब मैंने ज्वाइन किया मेरे हस्बैंड को. um, I was always very well aware of my duties towards my family, my kids, my husband. I never jumped any of my duty. Completed all the household work, जो भी मेरा काम था, खाना बनाना, everything. And at sharp 10 a.m. I would be at my office, which was on the ground floor of our building. For 5 years, I even worked every Sunday, paying double charges to the staff, begging them to do the duties on Sundays so that dispatches are on time. मेहनत बहुत थी क्योंकि पढ़ी लिखी उस झुंड में सिर्फ मैं ही थी. बाकी सब एक काम करने वाले जो लेडीज थे, दे वर नॉट वेल एजुकेटेड या किसी में इतनी समझ नहीं थी. अब because of all this, I could not even socialize well with my relatives वगैरह. But I never regretted anything. Relatives who did not see my daily routine only saw that I wanted to spend time with my husband at our office. अब ऐसी मेंटालिटी को मैं कोई जवाब भी नहीं देती थी. I would do my work perfectly without leaving any scope for anyone to complain about anything I did. The focus was always work. सिर्फ 2 लेडीज के साथ मैंने स्टार्ट किया था. पूरा ये प्रोसेस जो मेरे हस्बैंड की गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया था सीखना. ही फोकस्ड ऑन गेटिंग ऑर्डर्स एंड आई फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग देम प्रॉपर्ली. बहुत सारे एरर्स भी हुए, बहुत सारे ट्रायल्स भी हुए मेरे साथ. कई जगह मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा कि भाई ये गलती हो गई. बट वी कंटिन्यूड एंड विद इन 2 years we boomed and there was no looking back from them. And the ones who said all those blah 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 started praising my involvement in business and my ability to perfectly handle ghar and factory with those small 2 kids. But nothing went above my head, lower my head, or whatever you say. ना रिलेटिव्स का मेरे को नीचे गिराना कुछ असर किया, ना उनकी तारीफ करना कुछ असर किया, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा था मेरा बिजनेस. मुझे काम करना है, मुझे कुछ करना है. दैट वाज माय फोकस. वो यही था चैलेंजेस. Amazing, amazing. That was quite a story. So मेरा जहाँ पर फोकस गया वो था पॉइंट फोकस. तो आपने बोला कि फोकस इज समथिंग जिस पे आपने ध्यान दिया एंड यू मेड श्योर कि देयर वाज नो लुकिंग बैक. यस. ग्रेट. तो अभी आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस में अपने बिजनेस के बारे में बहुत बोला कि आपने सारे रोल्स किए हैं और आपने कैसे उसे ग्रो किया. सो आप लालास के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे सारे लिसनर्स को? हाँ, लाला दवासास मेरे हस्बैंड के जो परदादा जी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था. एक छोटा सा आयुर्वेदिक शॉप है हमारा, गुलजार हाउस, चार मीनार एरिया में, हैदराबाद. उन्होंने स्टार्ट किया था आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन. हर्ब्स बेचते थे, वो दवाइयाँ बना करके बेचते थे. बट मॉडर्न जमाने के हिसाब से रोहित ने जब उसको उनका था ऐसा कि मैं कुछ मॉडर्नाइज करूं इसको. तो मेरी शादी के पहले से ही उन्होंने 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे. और उसको लेकर के मतलब उन्होंने मेहनत भी की. 6 मेडिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स पर काम किया था उन्होंने अंडर द नेम लालाज. तो ये रोहित का ड्रीम प्रोजेक्ट था. वी स्टार्टेड विथ 5 मशीन्स.
And now we have more than 35 machinery at our factory at Jalpalli area. With time, we have grown organically and very slowly. And we can majorly South India and have done even exports in Malaysia, Singapore, Dubai, Oman, and Russia. Uh, अब हमारा फिफ्थ जनरेशन जो है, वेदांश मेरा बेटा, वो 20 years का हो गया है. 2 years back he joined us, and with his entry he has made us fully techno pro, and put Lalas on many shopping portals like Amazon, Flipkart, एंड वो बहुत मेहनत कर रहा है, वेबसाइट भी बना चुका वो, एंड लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है लालास को ऑनलाइन रीच करने में. ही मेड इट वेरी कंफर्टेबल. तो ये है हमारा लालास. वाओ, सो जितना आसानी से आपने बोला, आई एम श्योर द जर्नी मस्ट हैव नॉट बीन लाइक दैट. बहुत मेहनत और बहुत टाइम और एफर्ट यस गया यस होगा उसके पीछे, जितना आपने अभी उसको टेक्नो प्रो बना दिया है. यस. Each generation has brought some change in that Lala Davasas. 123 years ka legacy, 5 generations, and with one promise, purity. It is not a joke, Ishita. It is not at all a joke. बहुत मेहनत और कंसिस्टेंसी, लोगों का ट्रस्ट भी था उसमें. तो ये चीज बहुत बहुत मायने रखती है. Absolutely, I completely agree Yeah. with you. Okay, so let's move on. So our next question is, होम टू बिजनेस के अलावा एनी अदर प्लेसेस जहां आपने ब्रेव लीप लिया है? ब्रेव लीप तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, मेरा थॉट प्रोसेस का बहुत लीप हुआ है ड्रास्टिकली आफ्टर ज्वाइनिंग मिसेस इंडिया तेलंगाना एज अ कोर टीम मेंबर. ये दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर मैरिड वुमेन विद देयर ड्रीम्स वॉकिंग ऑन अ रैम्प एज अ क्वीन, विदाउट एनी बैरियर्स. कलर, एज, लुक्स का कोई मायने नहीं, बट बस उस पे वॉक करने का जो ड्रीम होता है हर लेडी का एज अ क्वीन, उसको पूरा करना. तो मुझे अच्छा लगा इतने सारे लेडीज से इंटरेक्ट करते हुए और उनको मुकाम हासिल करते हुए देखते हुए. एवरी प्लेस इज अ लर्निंग एंड लेवलिंग अप स्पेस फॉर मी. Joining this organization made me see many women अदर देन रिलेटिव्स के जो लेडीज के बीच में मैं सर्कल की तरह गोल गोल घूम रही थी, उनके अलावा एक अलग सेट ऑफ लेडीज को नजदीक से देखा है. आई हैव सीन देयर कामनेस. कितना वो लोग कितना काम और कितना फ्रेंडली, वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हुए भी एक दूसरे को हैंडल कर रहे थे विदाउट एनी फाइट्स, एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ इन देयर एटीट्यूड. उनको कोई घमंड नहीं था कि वो आए थे हाई प्रोफेशनल लेवल से, बट फिर भी कोई घमंड नहीं था. ये चीज बोलती हूँ हमको हमारे घर में भी इम्प्लाई करना चाहिए. पता नहीं किस चीज का हम लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं लेडी. तो लेडीज को अपना वर्थ पहचानना चाहिए. ये देखना चाहिए कि हम दूसरी लेडी को कैसे लेवल अप कर सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म से मैंने ये सीखा. अमेजिंग. सो कैन वी से women empowering women? यस. Great, I totally believe in that and I agree as well. यस. तो जब हमने इंटरव्यू के पहले कुछ बातें की थी, तो जब पता चला कि हम्म. आप यूनिवर्स और गुड वाइब्स में भी बहुत बिलीव करते हो, और मैंने अभी रिसेंटली यस यस. एक एपिसोड भी किया था इस टॉपिक पर, तो क्या आप अपने हम्म. व्यूज इस पे बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ वाइब्स एंड एनर्जीज की. मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि यूनिवर्स मेरे से बात करता है. मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ. आज से नहीं, हमेशा से. मैं अपने आप को जहां देखना चाहती हूँ मैं देखती हूँ, वहां वहां तक देखती हूँ मैं. तब पता नहीं क्या होता है, क्या रास्ते बनते हैं, कैसे वो अपने आप होता है, आई डोंट नो, बट आई माई सेल्फ एक अलग लेवल पर जब मैं देखती हूँ तो मैं वहां रीच होते हुए भी अपने आप को देखती हूँ. सो आई फील विद माई एक्सपीरियंसेस कि हमको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, फोकस रखना है विथ प्योर इंटेंशंस टुवर्ड्स वॉट एवर वी विश, एंड वी विल सी द मैजिक हैपनिंग. तो कोई भी रहने दो, कोई भी एस्पेक्ट रहने दो, चाहे घर, फैमिली, पर्सनल इश्यूज, वॉट एवर. आप अच्छा सोचोगे, अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे एनर्जीज आप रखोगे, तो आसपास का माहौल भी सही होगा. करेक्ट. एब्सोल्युटली, मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट ऑन दिस. सो मूविंग अहेड,
आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अलका दैट अभी आपने जितना भी ब्रेव लीप लिया है या फिर आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं, और आपने बोला कि आपके किड्स भी हम्म। बहुत छोटे थे जब आपने स्टार्ट किया और अभी तक की Yes, जो जर्नी yes. रही है, तो आपने पेरेंटिंग कैसे मैनेज किया इतना डिफिकल्ट जो अभी वर्ल्ड चल रहा है विद सो मेनी थिंग्स अराउंड, आपने कैसे मैनेज किया ये सबके साथ? उस टाइम पर एक हाउसवाइफ के लिए आई थिंक वो जो जमाना था, वो जो 20 साल पहले की जो मैं बात कर रही हूँ, तब इतना इजी नहीं था इशिता। बिल्कुल भी इजी नहीं था मैनेज करना छोटे बच्चों के साथ। बट आई आई ऑलवेज बिलीव कि पेरेंटिंग इज नॉट अ ड्यूटी। आप ड्यूटी समझ के करोगे तो बोझा लगेगा। आप मैं हमेशा ये सोचती थी कि दिस इज माय इन्वेस्टमेंट ऑफ मेरा टाइम इन बिल्डिंग गुड ह्यूमन बीइंग्स फॉर माय फ्यूचर जनरेशंस। मैं पता नहीं क्यों जनरेशंस में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे आगे के जो मेरे जनरेशंस रहेंगे उनको अ, अच्छी बातें सिखाए। अभी मैं उनको जहां पर भी लूप होल होगा, मैं इनको सही करूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी ये लोग उनके आगे वाले जनरेशंस को और अच्छा करेंगे, बेटरमेंट विल डेफिनेटली कम। तो मैं हमेशा ये बात में बिलीव करती हूँ कि जो बोओगे वही पाओगे। सो इफ यू आर गिविंग गुड वैल्यूज टू योर किड्स, डेफिनेटली वो वैल्यूज आपके generations में चले। एंड आई यूज टू पुट अलार्म्स इन माय फोन टू मैनेज मेरे बेटा बेटी का स्कूल का टाइमिंग्स। एंड आफ्टर 5 PM आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट, चाहे कितना भी ऑफिस वर्क रहने दो, मैं अपने घर में होती थी। अपने डिनर कुकिंग बच्चों का होमवर्क आई ऑलवेज यूज टू बी 5 PM। एंड ऊपर नीचे घर फैक्ट्री रहने से शुरू में मेरे को बहुत इजी था। एंड मदर इन लॉ का सपोर्ट भी था मुझे हमेशा। Slowly, as kids were growing, they understood that they can help me out by doing their small works themselves. मैनेजमेंट स्किल्स बच्चों में भी आने लगी, क्योंकि वो दिन भर यही देखते थे अपनी माँ को करते हुए, अपने घर में सिस्टमैटिक चीजें देखते थे, इसीलिए उनमें भी वो चीज आने लगी। एंड स्लोली उनको भी आदत हो गई थी मेरे बिना मैनेज करने की, छोटी छोटी सी उनकी जो डेली की रूटीन होता था वो। ओके, आई थिंक अगेन आपने ये बहुत साल पहले किया है, एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जो अभी वर्किंग हैं, लाइक मी इंक्लूडिंग, जिनको मैनेज यस। करने में मुश्किल होती है, और हम भी आई थिंक ये रूटीन अपनाना चाहते हैं। सो आई थिंक आपके आंसर से आई एम श्योर बहुत लोगों को आइडिया आएगा कि कैसे मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से मैनेज हो सकता है। यस ऑफ कोर्स। बच्चों को फैमिली को मेन प्रायोरिटी रखना आपकी ड्यूटी है। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगी। आपका काम अपनी जगह है, बट अगर से आप सिर्फ काम करते रहोगे तो काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों की उम्र भी बढ़ती जाएगी। आप ये समझो कि बच्चों की खर्चा हो रही है आपके काम के पीछे। सो दैट इज नॉट अ गुड डील। एज अ बिजनेस वुमन आई विल एडवाइस दिस वोंट बी अ गुड डील, क्योंकि आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। तो आई विल से बैलेंस, बैलेंस करो अपने घर, काम, अपनी फैमिली, सभी हम्म। में बैलेंस रखो। रिलेशनशिप्स में, बच्चों में, यू डोंट हैव टू बी ऑलवेज विद द किड्स पैम्परिंग देम, बट यू हैव टू मेक दैट बैलेंस इन योर लाइफ, हर बात का। करेक्ट, इसी को तो वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है। यस यस। ओके, so it was wonderful to have you here. I have one last question for you. हम्म। Would you like हम्म। to share with our listeners some tips to help them take the brave leap? मैं एक बात बताऊं। अगर हम अपने काम से काम रखेंगे, दैट इज माइंडिंग आवर ओन बिजनेस एंड यूटिलाइजिंग द टाइम, ये दो अगर आप काम करने लग जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका टाइम आपको आपको सही रास्ते पर खुद ही लेकर के जाएगा। ऑलवेज वी हैव टू बी ट्रू टू योर ड्यूटीज। यू जस्ट कांट शाइन योर ड्यूटीज एंड आस्क फॉर योर राइट्स। तो एंड यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज योर वर्थ। वर्थ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और अपने आप को बहुत कीमती बता रहे हो। यू हैव टू बी, यू हैव टू लेवल अप समवेयर, जो कोई और नहीं कर सकता, जो कोई आपके अलावा कोई और आपकी फैमिली में आपका वो जगह नहीं ले सकता। तब जा करके आप का वर्थ क्रिएट होगा।
तो और आई फील कि लेडीज को ये माइंडसेट से दूर रहना चाहिए. दे हैव टू इग्नोर ऑल दिस फैमिली पॉलिटिक्स. इफ यू बी इन दिस स्मॉल टॉक्स यू कैन नेवर ग्रो, नेवर ग्रो. So you have to utilize your time in better things, improving yourselves. Don't consistently जब blame game खेलते रहोगे तो बस गेम ही खेलते रहोगे, जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाओगे. तो लेवल अप, इग्नोर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. चाहे घर रहो या ऑफिस रहो, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, फोकस ऑन योर टारगेट्स एंड देन यू कैन टेक अ लीड. अब तुमने देखा होगा शेर लेपर्ड जो है, हमला करने से पहले पीछे हटता है, 2 कदम 4 कदम पीछे हटता है. उसका मतलब क्या है? आपको शांत होना है, सेटल होना है. अपना जो एग्रेसिव नेचर है उसको थोड़ा सा शांत करो और फिर आप अपने टारगेट पर फोकस करो और एक छलांग लगाओ. तब देखो आपका टारगेट आपके हाथों में होगा. छोटे छोटे चीजें चेंज करते करते आपको डेफिनेटली एक बड़ा रिजल्ट आएगा और एक मैजिक जरूर होगा लाइफ में. सो फोकस, बैलेंस एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. So thoughtful. And my podcast is all about this, about evolving. So I think this is all about evolution, what you just said, and very well explained. Thank you so much for sharing this. Thank you, Ishita, for inviting me. Thank you. Thank you so much for being part of my podcast episode today. It was wonderful to interview you and host you today. So let me share my quote with you and with all the listeners for this episode that I have. Her courage didn't roar, it whispered, try again, build again, become again. Stay tuned for the upcoming episode. If you feel connected with me and it gives you a positive feeling, do reach out to me for a coaching session by booking my time on the link mentioned in the description. I support middle aged individuals reach greater heights by evolving and turning their life around. Do share it within your circles. Do like, share, download, and subscribe to my channel. Let's evolve. Have a wonderful day ahead.